हेलो गाइस, परव के चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम करने जा रहे हैं इंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। ठीक है, इंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ लेते हैं। इट प्ले एन क्रूशियल रोल इन इंडोक्राइन सिस्टम एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज मास्टर gland. Okay, and then pituitary gland will control all the functioning of all the glands. Means to say, if pituitary gland is not there, rest of the gland will not work at all. Okay, and if there is disturbance in the function of pituitary gland, the hypothalamus will be the dominant and the pituitary gland will be the recessive. I will tell you later what is the meaning of dominant and recessive here. So pituitary gland is also responsible for growth. It is also known as growth hormone. Okay, if a question will come in exam, what are the function of pituitary gland, you should have to write it helping for growth, and it will control the functioning of all the rest of the hormones. Okay, and then if the question will arise that why pituitary gland is called as master gland, you should have to write that it will control all the rest of the endocrine glands, functioning of endocrine glands. And then if a question will arise that what happen when there will be less secretion by pituitary gland, less or more, अगर उसने ज़्यादा सिक्रीट कर दिया, अगर उसने कम सिक्रीट किया तो क्या होगा? अगर लेस किया तो ड्वार्फिज्म आई विल राइट अगेन ड्वार्फिज्म. Okay, dwarfism means to say small height. If a question will arise, a person is having small height or is facing a problem of dwarfism, and then they will ask A, name a hormone which is also called master gland. B, question may come that which hormone is responsible for the less growth of the particular person. Okay, and then we are going to learn about hypothalamus. I had tell you before that recessive and dominant means जो ज़्यादा क्या है दूसरे पे दबाव डाल लेता है, जो मेजोरिटी में है, एक हिसाब का हम इसको कह सकते हैं मेजोरिटी. फॉर एग्जांपल, अगर आपकी बॉडी में एक इतना सा कीटाणु है और एक इतना सा कीटाणु है, ये इस पर अपना दबाव डाल लेगा और इसको भी अपने अंदर निगल लेगा. ठीक है, इसको कहते हैं हम डोमिनेंट. और रिसेसिव का क्या मतलब है? रिसेसिव का मतलब है एक छोटा और एक बड़ा. ठीक है, ये जो है इस पे अपना दबाव डालेगा और ये हो गया रिसेसिव और ये होगा डोमिनेंट. उसका ये हम कन्वर्स कह सकते हैं जो मैंने आपको पहले समझाया. ठीक है, एंड देन इफ यू गो टुवर्ड द hormone that is hypothalamus also play a crucial role in the functioning of endocrine gland. And then we are able to write, if pituitary gland will not work properly, hypothalamus will take place of pituitary gland. You should have to write 3 bullets point. Master gland, height, growth. Okay, and then
and then you should have to write hypothalamus will take place of it. Okay, hypothalamus is done, we are done with it. Pituitary gland is also done by us, and now we are going to start learning about pineal gland. Pineal gland is found in brain. It is p-shaped. It helps in releasing of hormone melatonin. It is collective. ओके, मेलाटोनिन क्या करता है कि वो ट्रिगर करता है कि कब हमने जागना है, कब हमने उठना है। ठीक है, उठना जागने की बात होगी, कब हमने सोना है, कब हमने जागना है से। ठीक है, कई बार आपको अलार्म से नींद आपकी नहीं उठती, पर खुद ब खुद ही हमारी नींद खराब हो जाती है। क्या होता है कि पीनियल ग्लैंड जो अपना काम करना शुरू कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट हम स्टडी करने वाले हैं थायराइड ग्लैंड के बारे में। थायराइड ग्लैंड क्या होता है, नेक रीजन में होता है जी। देखो, फीमेल और मेल में दोनों में होता है, नेक रीजन में प्रेजेंट है। ठीक है, आप सिंपल यही भी लिख सकते हो कि अकेला नेक रीजन में प्रेजेंट है। और आप पैराथायराइड ग्लैंड और थायराइड ग्लैंड को एक ही बनाकर लिख सकते हो। देखो, इन दोनों को एक ही बनाकर लिख सकते हो। अगर आप इनको दोनों को एक ही बनाकर नहीं लिखना चाहते तो आप लिख सकते हैं थायराइड ग्लैंड इज प्रेजेंट इन नेक रीजन and play an important role in endocrine glands, functioning of endocrine gland. And then you should have to write the functioning of parathyroid gland. Parathyroid gland is present just behind. Behind to means to say पीछे। जो पैराथायराइड ग्लैंड होता है वो थायराइड ग्लैंड के बिल्कुल जरा सा ही पीछे होता है। और क्या करता है वो क्या करता है, उसका मेन फंक्शन ये होता है कि वो कैल्शियम को मेंटेन करके रखता है बॉडी में। ठीक है, कैल्शियम लेवल को मेंटेन करके रखता है। आगे हम थाइमस की अगर बात करें तो ये प्रोजेनिटर सेल को टी सेल में बदलने में हेल्प करता है। ठीक है, टी सेल में बदलने में हेल्प करता है। और क्या करता है, ये भी लिख सकते हैं लिम्फोसाइट्स को टी सेल्स में बदलने में हेल्प करता है। अगर एक लिम्फोसाइट पैराथायराइड ग्लैंड से गुजर के पास कर जाए तो वो टी सेल में बदल जाएगा। ये भी हो गया हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस हमने अभी करना है। ठीक है, थाइमस का मेन फंक्शन, थाइमस हमने कर लिया। अभी मैंने थाइमस का ही आपको फंक्शन बताया है कि थाइमस क्या करता है, वो करता कैसा है, टी सेल्स में बदल देता है। अगर कोई थाइमस में से पास हो जाए ना तो फिर होता है प्रोजेनिटर सेल जो टी सेल में बदल जाते हैं। और पैराथायराइड का मैंने आपको पहले फंक्शन बताया था कि वो कैल्शियम लेवल को मेंटेन करके रखता है। आगे हम एड्रेनल ग्लैंड के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। एड्रेनल ग्लैंड ये हमको स्केरी सिचुएशन फेस करने में हेल्प करता है। स्केरी सिचुएशन कई बच्चों को नहीं पता स्केरी का मतलब क्या है। स्केरी का मतलब है डर भरी। अगर आपने कोई कुत्ता देख लिया है, गली का कुत्ता देख लिया है, बहुत शिकारी होता है, आपकी टांग को निचोड़ देगा पूरा। निचोड़ने का मतलब, मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको फाड़ देगा, चीर फाड़ कर देगा। तो आपके ब्लड में उस समय एड्रेनलिन रिलीज होगा। ये क्या करेगा, आपके ब्लड में मिल जाएगा और आपको बहुत ही एक्साइटमेंट होने लगेगी। एक्साइटेड, जैसे कि आपकी रेस 20 मीटर पर सेकंड थी पहले, अब आप 50 मीटर पर सेकंड करने लगोगे। ठीक है ना, एड्रेनलिन रिलीज होने के बाद क्या होता है कि आप 50 मीटर पर सेकंड, जरूरी नहीं है आपने कुत्ता देखा तो ही ऐसा होगा, जरूरी नहीं है। अगर आपको रेस है, आप किसी जल रहे हो कि मेरी इतनी कम है, मैं ही जीतूंगा, आप में भी एड्रेनलिन रिलीज हो जाएगा। और उससे रिलीज होने से क्या होगा कि जो आपका ब्लड जो है स्केलेटल मसल में
कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रांसफ़र हो जाएगा उसका, ठीक है। अब यहाँ तक कर लिया। अगर हम किडनी के बारे में पढ़ेंगे, किडनी आपको सिलेबस में नहीं है अभी, ये हम नहीं पढ़ने जा रहे हैं। अगर हम पैंक्रियास की बात करें तो पैंक्रियास तो बहुत ही भैया बहुत ही ज़्यादा अपना क्रूशियल रोल जो है वो प्ले करते हैं। पैंक्रियास क्या करते हैं, इंसुलिन रिलीज करने में हेल्प करते हैं। वो क्या करते हैं, हमें क्या करने में रिलीज करते हैं, हेल्प करते हैं हमारी, क्या करने में रिलीज करते हैं, इंसुलिन स्पेलिंग क्या है, इंसुलिन, ठीक है। इंसुलिन रिलीज करने में हेल्प करते हैं, जो क्या करते हैं, ब्लड के शुगर लेवल को मेंटेन करके रखता है, पूरा मेंटेन करके रखता है, ठीक है। और इंसुलिन के कई लोगों को इंजेक्शन लगते हैं, और वो क्यों लगते हैं, वो इसलिए लगते हैं क्योंकि उनमें ब्लड का लेवल जो बहुत कम होता है, शुगर का लेवल, ठीक है। कईयों को इंसुलिन बढ़ाने के लिए लगते हैं क्योंकि इंसुलिन बहुत ज़्यादा होती है, और उनको कम करने के लिए लगता है क्योंकि उनका ब्लड का शुगर लेवल बहुत ही ज़्यादा होता है, ठीक है। और अगर हम पैंक्रियास की बात करें तो ये एक क्वेश्चन आ जाता है, डुअल का मतलब दो काम, डुअल स्पेलिंग DUAL, डुअल का मतलब दो काम, ठीक है। पैंक्रियास जो है डुअल ग्लैंड, वाई पैंक्रियास इज कॉल्ड डुअल ग्लैंड। अगर आपको किसी में से आप जो वीडियो देख रहे हैं उसको पता है तो कमेंट सेक्शन में आपको बता सकते हैं इसका आंसर क्या है। वैसे मैं आपको बताने वाला हूँ, डुअल ग्लैंड इसलिए है क्योंकि ये एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन फंक्शन दोनों निभाता है। और एक इसका फंक्शन ये भी आ सकता है कि एंडोक्राइन और डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करते हैं, ठीक है। इनके दोनों फंक्शन है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज डुअल ग्लैंड एंड इट इज फाउंड इन एब्डोमेन just above the kidney. And then there is a gland which is present only and only in female. A question will also arise from here. Name a gland which is found only in female, that is ovary. We are not going to study about uterus, but I will tell you some about it, little. Ovary, it is only found in females and it help in secretion of estrogen. Or what is another name of estrogen? Progesterone, okay. And then testis, there is a pair of testes, pair means two testes are found in each human being, and they play a crucial role in formation of sperms, okay. Formation of sperms, it is already found in males. गाइस, मैंने आपको थायराइड ग्लैंड के बहुत ही ज़्यादा कम फंक्शन बताए हैं, इसलिए मैं आपको मोर डिटेल में उसका बताने जा रहा हूँ थायराइड ग्लैंड के बारे में, ओके। सो वी विल स्टडी अबाउट थायराइड ग्लैंड नाउ. It is found in neck region in both male and females, and it also plays a crucial role in functioning of endocrine system. And thyroid gland release thyroxine. If there will be less thyroxine, we will lead to goiter. And a question will arise, name a gland which help in secretion of thyroxine. A question, answer is thyroid. B question, if there will be less amount of thyroid will secrete, what will happen? We will suffer by goiter. Name
This, what are the symptoms of the disease caused by thyroid gland? What are the answer? What is the answer? Answer is swollen neck. हमारी नेक रीजन जो है बहुत फूल जाता है. आपने भी कई बार पिक में देखा होगा, आप गूगल से भी सर्च करके देख सकते हैं. What happen when goiter is being caused? Okay, so that's all about today's video. अगर कोई भी एंडोक्राइन फंक्शन आपको रह गया है, आपको लगता है कि आपको फंक्शन सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो. मैं आपको मोर एंड मोर डिटेल में इंफॉर्मेशन दिला सकता हूँ. अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी ही वीडियो चाहिए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए. आपको अगर आप हाइपोथैलेमस, लास्ट में मोमेंट में मुझे एक चीज़ याद आ गई है, पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड, आप इसमें फंक्शन ऐड करके लिख सकते हैं. तीनों में दे आर फाउंड इन ब्रेन. ओके, अगर आप अपनी रिप्रेजेंटेशन अच्छी करनी चाहते हो, सबसे पहले से ब्रेन लिखें और अगर लिखें पिट्यूटरी ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, हाइपोथैलेमस. ठीक है, फिर यहाँ पर लिखें एब्डोमेन, नेक लिख सकते हो, नेक रीजन. फिर आप थायराइड और पैराथायराइड. ठीक है, और थाइमस भी लिख देना. और फिर एब्डोमेन, फिर आप लिखेंगे एड्रेनलिन, किडनी, पैंक्रियास, और फिर प्यूबिक रीजन, ओवरी, यूट्रस और टेस्टिस. थैंक यू.